دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ کون؟ جی انسان علی بول رہا ہوں ارشد صاحب۔ ہلو، ہاں بولیے۔ اور کیسے ہیں ارشد صاحب؟ اللہ کا شکر کرم۔ کہاں ہے؟ ہلو کرم جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہلو جی ارشد صاحب۔ جی بولے نا، آپ کی آواز آ رہی ہے نا؟ بولے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ہمارے کچھ دن پہلے ایک مختصر سی بات ہوئی تھی، اس وقت میں مشروف تھا اور آپ مسلم شریف سے کچھ حوالہ دے رہے تھے مجھے، اور ہم نے کہا تھا بھائی بعد میں بات کریں گے، تو آج بات مکمل کر لیتے ہیں ارشد صاحب۔ نبی علی کس چیز کا حوالہ؟ جی کس چیز کا حوالہ؟ وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کچھ حوالہ دے رہے تھے مجھے، تو ہم نے کہا بھائی آج بات مکمل کر لیتے ہیں، اس دن بات ہو نہیں پائی تھی ہماری آپ کی۔ جی تو معاویہ کے تعلق سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ معاویہ کے تعلق سے جیسے کہ ابھی آپ پہلے تو چھپے تھے، کیونکہ میں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع شروع کیا تو آپ کو برا لگ گیا تھا، لیکن اب آپ ظاہر ہو گئے ہیں۔ چھپے تھے؟ ارے بھائی آج کے سال کس نے اطلاع دے دی کہ چھپے تھے؟ ایسا تو عبداللہ کے کہنے پر آپ نے جو ہے یہ بیان بازی آپ نے جاری کر دی یہاں پہ؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے مجھے خود ایک بار آپ نے فون کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا، اور آپ نے خود کہا تھا کہ تم حضرت نہیں۔ دیکھیے مجھے یاد ہے، سب یاد ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں تحقیق کر رہا تھا، پہلی بھی میری گفتگو تحقیق فری ڈیپینڈ تھی، ٹھیک ہے؟ میں نے تمام دیکھا یہ سب جھوٹا دم بھرنے والے مسلکی اعلیٰ حضرت کا جھوٹا بات بیان کرنے والے میں نے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو دیکھا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت سے ہمارا کوئی بیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ اعلیٰ حضرت سے نہ کسی اور سے ہے، بس عوام سے ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے علماء سے ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایسا مائنڈ واش کر کے رکھا ہے کہ بس اعلیٰ حضرت مطلب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر وہاں پہ مسلکی اعلیٰ حضرت بادشاہ کے دربار میں غلاموں کا نعرہ لگ رہا ہے، اور یہاں تک کہ علماء کہتے تھے، یہ میں بھی کہتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے راستے پہ چلو گے جنت پہنچ جاؤ گے، میں بھی یہ بات کہتا تھا، میں بھی یہ گفتگو کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو کہو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کا راستہ ایسا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا مائنڈ واش کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلاف جاؤ گے آپ کو جو ہے یہاں تک کہ تعزیانے پڑیں گے۔ نہیں پہلے کرتے تھے، ایک منٹ پہلے کرتے تھے آپ اعلیٰ حضرت بات کی، مطلب اعلیٰ حضرت کے راستے پہ جاؤ گے تو جنت ملے گا، اب نہیں کرتے ہیں۔ جب حق ہم نے پہچانا ہے تو ہم نے کہنا چھوڑ دیا، ہم نے کہا جو اہل بیت کے راستے پہ چلے گا وہ جنت جائے گا، اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار رہے گا وہ جنت جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا قرآن مانے، اہل بیت کا راستہ دکھانے والا ایسی کوئی بشارت نہیں ہے، بشارت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت کے راستے پہ چلنے کا طور طریقہ، ان سے محبت کرنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے ہی تو بتایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا، تو یہ بتاؤ ان کے دشمنوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، ان کے نعرے لگاتے ہیں اور محبت کا تقاضا ہے۔ اسی پہ آئیں گے ارشد صاحب، اسی پہ آئیں گے ہم، اسی پہ آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب بتایا ہے تو بنا بریلی شریف جائے ہوئے آپ اہل بیت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یعنی کہ جو اعلیٰ حضرت دنیا میں نہیں تھا تو لوگ مانا ہے۔ سن لیجیے، میں کہتا تھا سن لیجیے، بنا اعلیٰ حضرت نہیں تھے تو کوئی اہل بیت کے راستے پہ، کوئی جنتی راستے پہ نہیں چلتا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے سب گمراہ تھے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا آپ ہی نے کہا کہ ہاں بھائی انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے بتایا، میرا مائنڈ واش تھا۔ ارے میری بات سن لیجیے،
جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو اتنا گہرائی میں مت جائیے کہیں. میں نے آپ سے کیا کہا جی؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا تھا اور پہلے ایسا مائنڈ واش تھا میرا, میں ایسی چیزیں بولنا کرتا تھا, نہ سنا بول دیا کرتا تھا نا, تھا ہے میں فرق ہے نا. وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ تھا, اب نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ بنا بریلی شریف جائے ہوئے اہل بیت کی تعظیم اور ان کا ادب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب وہابیہ جو دیکھے نہیں جاتے وہاں پہ, وہ اہل بیت سے بھی دور رکھتے ہیں, انبیاء علیہ السلام. جناب علی, یہ کس نے کہہ دیا کہ بغیر بریلی جائے کسی کا ادب و تعظیم اہل بیت کی پتہ نہیں چلے گی؟ اہل حدیث آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اہل حدیث اور دیوبندی یہ سب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اہل حدیث جو اپنی کفریہ عبارت کی وجہ سے کافر ہیں, بس اور کیا. ایک منٹ رک جائیے. اہل حدیث, دیوبندی, قادیانی, شیعہ یہ سب اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں. ارے جناب علی سن, جب نفرت کرتے ہیں تو یہ جب کافر ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے محبت کرنے والا. نہیں, کافر دیکھیے, ہر عوام دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ, ٹھیک ہے, ہر عوام کافر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا حسام الحرمین میں, من شک فی کفری و عذابی فقط کفر, جو ان کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو کافر نہ مانے. اب عوام الناس اس میں کہاں سے آتی ہے بھائی؟ عوام الناس کہاں سے آئے گی؟ جو ٹوپی لگاتا ہے, جو مرچا بیچتا ہے, جو چھولے بیچتا ہے, جو پوری بیچتا ہے, وہ بیچارے ٹوپی لگا کے کہیں اور مسجد چلا جاتا ہے, دیوبندیوں کی مسجد یا کسی کی مسجد, وہ کافر ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا. تو یہ تو علماء کے لیے ہے, جو علماء ان کے پڑھتے ہیں, جو جانتے ہیں ان کی کفریہ عبارت پر مطلع ہونے کے بعد بھی ان کو مومن مانے, مسلمان مانے, وہ کافر ہے بھائی. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کے آپ حکم کو خود ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے. ہر دیوبندی سے مسافہ, ہر دیوبندی سلام کرنا کافی کفر اور شرک تھوڑی نا ہے. دیکھیے, میں 3-4 فرقے کا نام لیا ہوں اور آپ صرف ایک واحد دیوبندی کا چرچا کر رہے ہیں. بھائی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو, میں نے کیا کہا؟ من شکا فی کفری بازابی فقط کفر. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جو ان کے سمجھ میں آیا, ہمارے سمجھ میں آیا, وہ مت سمجھائیے, ہمارے سمجھ میں آیا. کل ملا کے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں اور یہ گمراہ ہیں, یہ بات آپ بھی مانتے ہو. اب چلیے آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کا اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہو. دیکھو, اعلیٰ حضرت سے بغض نہیں رکھتے وہ بھائی. اعلیٰ حضرت نے کیا ان کا گھر لوٹا ہے کیا ڈاکہ ڈالا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں بغض ان لوگوں کو ہے کہ اندھا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کر رہے ہیں. میں نے جتنے بھی دیوبندیوں سے بات کی ہے وہ یہ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ میں اعلیٰ حضرت نے میرا گھر لوٹا یا ہماری خاندانی دشمنی ہے یا ہمارے باپ دادوں کی خاندانی دشمنی. نہیں, وہ علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, وہ جو دیوبندی کو کفر کافر 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 ہر جگہ کافر کہتے ہیں اور ان کو جو بدنام کرتے ہیں, اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی والے اتنا زیادہ اندھے ہو گئے احمد رضا کے عشق میں کہ ہر کسی کو کافر کافر کہتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ حدیث مبارکہ میں اور کچھ محدثین کے اسماء رجال کی کتاب میں کچھ تقلید کا رد آیا ہے نا. کس کا آیا ہے؟ تقلید کا رد. جیسے تقلید کا رد یعنی کہ جیسے بہت ساری محدثین نے بھی کہا ہے, تو وہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں, عوام الناس جو نہیں جانتی ہے اور ان کے پیچھے لگ جاتی ہے, مسجد میں چلی جاتی ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہے. جو عوام نہیں جانتی ہے, دیوبندی بنا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھانوی کیا تھے, گنگوہی کیا تھے, تو اس پہ حکم کفر نہیں لگے گا. تو یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب اس بات کو یہاں ختم کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات صحابہ کیسے ہو, کون گستاخی کیا؟ ابھی آپ نے یہ کہا کہ تقلید اسماء اور رجالوں کی کتابوں میں ہے. دیکھیے, تقلید ان چیزوں کی ہے جو بری کام کے لیے تقلید کرتے ہیں, اس کو منع کیا گیا ہے. تو کسی کے کہنے پر جو ہے کنویں میں گھس جائے یا کھائی میں گر جائے, ایسی تقلیدوں سے منع کیا گیا. بیٹھے دیوبندی, ایک منٹ ارشد صاحب, برے لوگوں کو عالم بنا کے بیٹھے ہیں, تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ارے برے لوگوں کو عالم بنا کر بیٹھے ہیں, یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, وہ بھی کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائی, وہ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہی جو ہے شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں. مگر عوام الناس نہیں آتا اس میں. سن لیجیے میری بات, نہیں جانتے تو آپ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب تفسیر نعیمیہ اٹھا کر پڑھ لیں. اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھی ہر دیوبندی جو ہے, ہر دیوبندی عوام میں جو ہے کافر نہیں ہوتا ہے, جس کو ہم کافر بولتے ہیں. چلے آگے کی بات کریں آپ, چلیں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ بھائی برے لوگوں کے لیے وہ رد ہے, تو وہی برے لوگوں کے لیے ہی رد ہے, اور برے مقلد یہی ہیں, اور بری تقلید اندھی یہی دیوبندی کرتے ہیں جو گنگوہی نازو کو مسلمان مانتے ہیں بنا تحقیق کے.
आप चलें आगे बात करते हैं। आपने कहा कि सहाबा की जो है अहले उनको सहाबा कहते हो जो अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं। बताइए किसको हम लोग सहाबा कहते हैं, जो कौन सहाबा अहले बैत? पहले देखिए कातिल और मकतूल में फर्क करें। आप मुआविया को सहाबा कहते हैं, ठीक है, मुआविया को जो है मानते हैं, मुआविया को कहते हैं रदी अल्लाह, उसके नारे लगाने, बहुत से लोग नारे भी लगाते हैं और नारे लगाए भी जाते हैं उसके। हम कहते हैं मुआविया के नारे क्यों लगाते हो भाई? क्यों ना कहें भाई, आप कोई दलील नहीं है भाई हमारे इनमें। अच्छा, कितनी दलील है, सुन लो मेरी बात, सुन लो। मैं आपको बताता हूँ, बात करें कितनों की नहीं, एक दलील से बात कर रहा हूँ मैं। सुन लीजिए, ये जो है अली बिन मदीनी की किताब थी किताबुल अहदास, ठीक है, किताबुल अहदास के अंदर, और तिबरी के अंदर भी है, तबरी के अंदर भी है मामला। बाद लोग तिबरी कहते हैं, बाद लोग तबरी कहते हैं। हाँ, तबरी के अंदर भी मामला ये है। किताबुल अहदास में अल मदीनी ने लिखा है, मुआविया ने अपने गवर्नरों को हुक्म दिया, ठीक है, जब इमाम हसन का जब जो है जहर दे के शहीद हो गए, हुक्म दिया कि अली को मानने वाले, अली के जो है जान पहचान, अली के शिया ने मोहब्बत करने वाले, उनको सबको असीर कर दिया जाए, उनके घर को वीरान कर दिया जाए। अली के नाम के जितने भी फजाइल हैं सब के सब उनको जला दिया जाए, और अली के फजाइल को चुरा कर मुआविया के, बनु मैया के और शेखैन के फजाइल बयान किए गए। वहाँ की मस्जिदों में ऐलान कर दिया, वहाँ के जो है खतीब जो मिंबर पे थे उनको ऐलान कर दिया कि झूठी हदीसें गढ़े और अली के नाम जितना भी जिक्र है सबको हटाएं, जो अली करने वाला मिल जाए उसकी गर्दनें कर लिसानुल मीज़ान के अंदर, तदरीबुर रावी के अंदर भी लिखा है कि जो अली का नाम लेने वाला था वो बनु मैया उसे कत्ल कर दी। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होता था, अली नाम रखा जाता तो उसको कत्ल कर दिया जाता। अहले बैत से नफरत यहाँ तक कि डर हो गया था कि अहले बैत का नाम नहीं लिया जाता था। ये सब मुआविया के दौर में मुआविया की मौजूदगी नहीं है। और मुआविया तो आपके फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में एक कोई हदीस भी नहीं होती ज़ईफ या सही, एक भी बाकी नहीं रहती अगर वो ऐसा किए होते तो। इसका मतलब वो ज़ईफ रिवायत है और ज़ईफ रिवायत पे आप अमल करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। अस्तगफुरुल्लाह, यही तो नाज़बियत है। आपको तो इतना भी नहीं मालूम भाई, तहकीक करके आया करें। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, इसको जो है इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में नकल किया है, और सवाइकुल मौरिसा में लिखा है सबसे ज्यादा हैदर करार के फजाइल है। 300 आयत मौला अली के हम मान रहे हैं भाई कि सबसे ज्यादा फजाइल जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। मेरी अब सुन लीजिए, मैं आप बोल रहे थे मैं खामोश था। आप कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म दिया कि उनके जितने फजाइल हैं वाली हदीस है उन्हें खत्म कर दिया जाए, उसको चुरा लिया जाए या जला दिया जाए या फूंक दिया जाए, है ना। तो बकौल आपके अगर ऐसा हुआ होता तो जितने फजाइल आज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं हदीस मुबारका में, वो सब गायब हो गए होते अब तक। अरे किसने कह दिया भाई हदीसे, मौला अली का हदीसे में नाम भी नहीं रह गया। आपकी बात नहीं है, सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप कहकर गए हो, आपकी बात से ही लग रहा है कि आप ज़ईफ रिवायत को पहले बात आप सुन लो, आपको नहीं मालूम है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुने। अरे जनाब आप मेरी बातें सुन लो, आपको नहीं मालूम है, सुन लो। इस फालतू की बातें क्यों करते हो? फलानी रिवायत को दलील बनाकर आपको खुद ही नहीं मालूम है, मनगढ़ंत रिवायत कोई नहीं है। सुनो, बनु मैया की शान में जितनी भी हदीसें आई सब मनगढ़ंत है, ठीक है। और रिजाल के इमाम जोजी ने किताबुल मौज़ूआत के अंदर ये बात लिखी है, और मुल्ला अली कारी ने किताबुल मौज़ूआतुल कबीर के अंदर ये बात लिखी है कि मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं है। हदीस जितनी भी है सब जाली हदीस है, सब। अरशद साहब, मैंने बनु उमैया की शान की बात अभी तक की ही नहीं है, बल्कि आपकी कही हुई बात का मैं जवाब दे रहा हूँ और आपकी झुकाई पकड़ी जा रही है यहाँ पे। अरे भाई आप जवाब ही क्या दे पा रहे हो? पहले सीखो अच्छे से। आपने कहा मेरी बात सीखो मेरे भाई। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मिनट खामोश रहे अरशद साहब। आपने कहा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में जितनी हदीसें हैं या जितनी बातें हैं सब गायब कर दिया जाए, और जो है बहुत सारी बातें आपने कही। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल में जो हदीसें हैं, जो है अहमद बिन हम्बल में है और दीगर किताबों में है, वो हम तक नहीं पहुँचती अगर ऐसा हुआ होता। यही तो आपकी गलतफहमी है। अली की सुनो, अली की दुश्मनियों को जलाने की कितनी कोशिश की गई। आप मौला हुसैन को करबला के अंदर मारा, शहीद किया गया, तब भी मौला हुसैन का नाम और दीन बाकी है ना। वैसे ही मुआविया ने इमाम अली मकाम मौला मुर्तजा की शान को, अहले बैत की शान को घटाने की कोशिश की, मगर जिसे अल्लाह बढ़ाए उसे कौन रोक सकता है। 72 लाशों के बीच में सुन लो मेरे भाई, सुन लो। आपने कहा कि वो हदीसें कहाँ से आ गई,
सुनिए, आपने जो बात कही दलील के हवाले से आपकी चोरी पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई तो आप यहाँ पे और मंत्री की बात कर रहे हो। मेरे भाई आपको खुद ही नहीं मालूम है इस्तेदलाल का तरीका, बात करने का तमीज। सुन लो, आप कह रहे हो अगर हदीस से जलाई जाती तो मौला अली के फजाइल कहाँ आते? आपको तो इतना भी नहीं मालूम है, मौला अली से 500 कुछ रिवायत मौजूद है किताबों में, और अबू हुरैरा 6000 हदीसें मौजूद हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में 5-6 साल रहे, जो मक्का से मदीने साल रहे, जो हिजरत करते रहे, उनसे कुछ हदीसें मरवी नहीं है। 500 की कुछ तादाद है हदीसों की, और अबू हुरैरा 6000 हदीसें मिलेंगी तुमको। मौला ये कहा कितनी तादाद है, कितने रावी है, और कितने हदीसें किसने बयान किया, उससे हमारी बात नहीं हो रही, मौजूद है यहाँ वहाँ से। तो फिर आप पहले जब आपको नहीं मालूम किसने क्या किया किसने नहीं किया, तो इस्तेदलाल मत किया करे जनाब अली, पहले सिखा करें। क्या बोल रहा है बंदा, सही बोल रहा है पकड़ी गई है? मेरी बात सुनिए, क्या चोरी आपने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इल्जाम लगाया, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, तो लोगों की नजरों से छुपाया गया। मैंने आप बोलते हो तो मैं बोलता नहीं हूँ, आप जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप बीच में बोलने लगते हो, तो आप इस्तेदलाल जनाब अली अच्छा करें, ये क्या बचकानी वाली हरकतें कर रहे हैं? अरशद साहब 2 मिनट देना। हाँ बोलो। 2 मिनट देना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जो है मौजू मनगढ़ंत रिवायत या आप अपने कहीं पीर फकीर से कही हुई सुनी हुई बातों को लेकर ये इल्जाम लगाए कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया, उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि अली की फजीलत में जितनी हदीसें हैं या जितनी बातें हैं सब गायब कर दो, सब यहाँ वहाँ कर दो, है ना। अब आपका ये कहना है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में अभी जो सारी हदीसें बची हुई हैं, अगर वो ऐसा किए होते या गायब करवाए होते या गायब किया गया होता तो हम तक नहीं पहुंचती। तो बकौल यही तो आपकी गलतफहमी मेरे भाई, क्योंकि हमारे पास जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास की फजीलत में बहुत सारी हदीसें अभी मौजूद हैं, तो आपके बातों में इस्तिराब है, और इस्तिराब वाली बातें जो है काबिल कबूल नहीं होती है। आप सुन लीजिए आपकी ज़हनियत पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, उसमें पर्दा है लेकिन क्या है, मैं आपकी ज़हनियत पर जो ताज्जुब कर रहा हूँ। आप कहते हैं अगर ये किया होता मेरे बकौल तो फिर इतनी हदीसें होती। अरे भाई मुआविया ने तो सारी कारनामे की अपनी तरफ से, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीन है और उसके नवासे उसकी बका है, वो उसने नहीं करने दिया। यजीद ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद तो करवा दिया, मगर इमाम हुसैन का नाम नहीं मिटा, तो इमाम हुसैन के मानने वालों का नाम मिटा, वो जिंदा होते रहे। अरे मुआविया ने क्या क्या किया है तुमको क्या मालूम है? ये जो हम तक हदीसें आई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है उन मुहद्दिसीन के ऊपर जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके इनको लिख दिया। इमाम नसाई खुद दमिश्क की जगहों को तकरीर कर रहे थे। बनु मैया के लोगों ने कहा मुआविया की शान में हदीसें बयान करो, उन्होंने कहा मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं, इतना मारा कि उनको शहीद कर दिया। ऐसे लोग थे अली की मोहब्बत करने वाले, इतने जाबिर और जो है फासिक के लोगों की खिलाफत को कबूल करने के बाद भी अली का नाम लेना नहीं छोड़ा। आप कह रहे हैं कि नहीं है। अरशद साहब अरे मेरे भाई आप नहीं जानते भाई, लंबी चौड़ी बातें करते हो, मालूम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा हुआ, इतनी अच्छी दलीलें दे रहा हूँ, आप अली बतूनी झाड़े जा रहे हो। सुनो पहले अच्छे एहसान में समझा करो, पहले अच्छी से समझा करो, तो नहीं मालूम है तो ना बोला करो। ये इल्मी लेवल की बातें होती हैं, ये आम लोगों की बातें नहीं होती। ऐसे तर्क बच्चे करते हैं जो आप कर रहे हो तर्क। कितने बड़े हो गए हो आप, आपकी उम्र इतनी हो गई है, जो तर्क कर रहे हो ये 8-10 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं ऐसा तर्क, तो उनको समझाया जाता है। आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े होकर बचकाने वाली हरकतें मत करो। बड़े हैं मगर आप बच्चे हो ना, तो आपसे मुझे तर्क करना पड़ता है। बच्चे नहीं होते, जो मैं बड़ा होता है वही होता है बड़ा, ठीक है। ज्यादा नहीं है सुनो, आपको इतना भी नहीं मालूम है, आपसे करना पड़ता है। नबी ने फरमाया कोई अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, तकवा है जिसके पास इल्म है वही बड़ा है। पहले आप अच्छे से सीखो, बच्चे से बड़ा से नहीं होता है। जो इल्म में आगे तकवे में आगे वही बड़ा है, ठीक है, बड़ा होने से नहीं होता। जितनी आपकी उम्र होती है ना बेहमदी ताला उतनी हमारी कमर है। आप बचकानी वाली हरकतें मत करें, पढ़े लिखे वाली बातें करें। अरशद साहब खाली पीली क्यों तकरीर कर रहे हो बेवजह? आप हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साबित करो गुस्ताखे साहबा है, दलील के साथ। गुस्ताखे साहब नहीं, गुस्ताखे साहब, अरे भाई जिसने नबी अली को गाली दिलवाई हो वो तो रसूलुल्लाह को गाली नहीं, गुस्ताखे अहले बैत, अरशद मियां गुस्ताखे अहले बैत साबित। अरे भाई जिसने अली को गाली दी क्या अली अहले बैत में नहीं है? कहाँ आपने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? अली अहले बैत में नहीं है? अरे कहाँ पढ़ा आपने कि गाली दी, हम ये पूछ रहे हैं। गाली दी भाई, हदीसें मौजूद है, मुस्लिम की रिवायतें मौजूद है, हर चीज की रिवायतें मौजूद है। इमाम हसन ने खुद फरमाया। रिवायत बताओ।
मुस्लिम शरीफ की हदीस है माँ, साद इब्न अबी वक्कास से कहते हैं तुम्हें क्या चीज माँ मना का तसब्बु अबा तुराब, क्या चीज आप पर रोकती जो अबू तुराब को गाली नहीं देते हो? तूने कहा अली को गाली नहीं हो गाली का अगर नहीं होगा तो चोर की सजा वो मेरी सजा है, ठीक है। ये बनु उसूल था, बनु मैया और मुगीरा बिन शोबा अमरिदिया मुआविया के कहने पर अली के ऊपर लानत करते। मैं आपको हदीस भेज दूंगा, ये आपकी रिकॉर्डिंग भेजो मत, हदीस नंबर बताओ। हमने पढ़ा है वहाँ गाली का लफ्ज नहीं है, तनकीद का लफ्ज है। क्या लिखा है? सब्बा का मतलब क्या होता है? तनकीद। सब्बा ये सुब्बू का लफ्ज क्या होता है? गाली नहीं होती है। तनकीद पहले तो आपको अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है? तनकीद, ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ के आओ, जब नहीं मालूम है तो ना बोला करो। देखिए हजरत का दिफा कर रहे हो तुम, उसका दिफा कर रहे हो, औलादे अली का, नबी का दुश्मन है, तुम्हें दिफा करो भाई, तुम्हारे लिए वही मुबारक, हमारे लिए हुसैन मुबारक। हम उनके दुश्मनों से बेदार है, उनके दुश्मनों को रदी अल्लाह ने चलो हंसो ना भाई, यही तो आपकी बेशर्मी है भाई। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि अली के दुश्मनों को भी तुम रदी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हो। कैसी तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत, कैसी तुम्हारी मोहब्बत? तमाम जो है अहले सुन्नत के इमाम जो है, अहले सुन्नत के इमाम का उसूली था, अहले सुन्नत के इमाम की तुम सुन्नत से खारिज हो जाएगा। इन्होंने हक उन्होंने छुपाया, फिर वो अगर वो हक बयान करने लगे तो फिर अहले सुन्नत का उसूल चला जाए। अहले सुन्नत का उसूल बता दो या तो हक दे दो, यही हम लोगों तक तो पहुँचाया गया ये सब बातें। ठीक है, अगर ये वाली बातें करोगे तो अहले सुन्नत के खिलाफ हो जाओगे, अहले सुन्नत से खारिज आप अरबी का तर्जुमा करो। ऐसा कौन सा दीन है भाई जिसके ऊपर जबरी दिलाता हो? इस चीज का सीधा रखो तभी तुम अहले सुन्नत हो, ऐसा दीन कोई का नहीं था। आप अरबी जो आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस बताई है साबित करो, उससे मुराद गाली होता है। उससे मुराद गाली, उसकी शरह में तमाम लोगों ने लिखा है, बनु मैया का यही तरीका रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं साबित कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये भेज दूंगा। व्हाट्सएप पर नहीं, ऐसे ही आप बताओ, इस पे फोन गाली है भाई, मुआविया गाली, साहब को हुक्म दिया था कि अली को गाली दो। गाली नहीं, तनकीद। आपको क्या चीज रोका है जो आप अली पर तनकीद नहीं करते? तनकीद। अच्छा चलो तनकीद मान लो, तो तनकीद क्यों करना अली के ऊपर? मुआविया क्यों हुक्म दे रहा है? नहीं तो तनकीद का मायने क्या होता है? नहीं तो आपने कहा तनकीद, तो चलो तनकीद पे ले लेते, तो मुआविया क्यों कह रहा है कि अली के तनकीद पर ले लेते नहीं? तनकीद लफ्ज तनकीद है ही है, आप बताओ। आप तनकीद है, चलो आपके पास तनकीद है, तो फिर मुआविया क्यों कह रहा है हिसाब से कि अली पर तनकीद करो? वो आप क्यों करो अली के पर तनकीद? वो आपस में रिश्तेदारी थी उनकी, कोई मामला आपस का रहा। रिश्तेदारी मुआविया अली की रिश्तेदारी कौन सी? तुम सरदार हो दुनिया की, दुनिया आखिरत में मेरे भाई हो, अना आखी हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, जो नबी के हैं वो मेरे भाई हो, तुम मुआविया और अली की मिसाल लगाते हो, वो भाई है भाई। तुम तो आप तनकीद पे बात करो, तनकीद का मायने क्या? सुनो, तुमको खुद नहीं मालूम है भाई, अगर तनकीद कोई एक दूसरे पे ऐसे इस तरह की बातें जो है मुनाज़रे के लायक में तुम बातें मत किया करो। गाली दे दिया। अच्छा साहब 2 मिनट दें आप, 2 मिनट। अगर कोई किसी के ऊपर तनकीद कर दे, एक मुहद्दिसीन दूसरे पे किए हैं तनकीद वगैरह, तो उन्होंने गाली दे दिया। तो अच्छा तनकीद मुहद्दिसीन ने किए हैं? आप तो मुहद्दिसीन की बात कर रहे हो, वो अली ने, वो नफ्स पैगंबर है, नबी के दामाद है और नबी जैसे होता है आपके नजदीक। अरे भाई तनकीद क्यों कर रहा है मुआविया? क्यों कह रहा है साथ को कि तुम तनकीद करो अली के ऊपर? क्यों हुक्म दे रहा है? तुमको नहीं मालूम है नबी इस्लाम ने क्या फरमाया है? चलो मन सब्बा अलियन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, वो मुसलमान नहीं रह सकता। तनकीद मान रहे थे। अरे भाई तनकीद भी छोड़ो, तनकीद भी अली के ऊपर नहीं कर सकते तुम। जाओ यार पहले अच्छे से पढ़ के आओ। चलो साहब एक पर रुको, तनकीद की बात चल रही है, अब तनकीद से मुराद आप गाली मत ले लो। बिल्कुल गाली है, तुमने तनकीद मुराद ली है, हालांकि उसमें गाली का लफ्ज़। चलो नहीं गाली मत करो मेरे भाई, आप जब नहीं आता जाता आप अपने पीरों को खुश करने के लिए। तनकीद का मतलब क्या है बताओ? तनकीद तो आप बता रहे हो, मैंने उसके ऊपर कह दी ना। तनकीद अगर मौला अली पे करता तो क्यों करता था मुआविया? क्यों करता था मुआविया? तनकीद करने का लायक है? बता रहे हैं हम, नहीं बता रहे हैं साहब। तनकीद लफ्ज है ही है। आप तनकीद से क्या मायने लेते हो? ही नहीं, सब्बा सुब्बू का लफ्ज है, गाली के लिए आता है। हाँ तो आप चलो वो तो अहले सुन्नत के आलिमों ने इसमें डंडी मार दी है। आप अरबी से उर्दू लुगत में आओ, आप बताओ देखो मायने क्या होता है। और मुआविया में आपको खुद नहीं मालूम, आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो हवाले लगा दी। खाली मुआविया को गाली देता था जो मुआविया अली के ऊपर, ठीक है? उर्दू तक भी लगा दिए जाएंगे। जाना डिस्क्रिप्शन में जाना, खोल के देख लेना। तुम्हें जब आता जाता नहीं चुनाव, तुम छाते वाली बातें मत करो भाई, और ये बेहतर है आपके लिए।
फालतू का वक्त खोटी मत किया करो मेरे भाई। अरशद साहब थोड़ा ठंडे रहो यार। अरे मेरे भाई नहीं मालूम है आपको यार, एक भी हवाला नहीं, जिसका तुम दिफा करने वाले हो, ऐसे इंसान का दिफा कर रहे हो जो अहले बैत के ऊपर कट्टर दुश्मन, जिसका बेटा कह रहा है इमाम हुसैन को कत्ल करके मैंने अपने बाप दादाओं का बदला जंगे बदर में ले लिया है, तुम उसके और उसकी बाप की जो है तरफदारी कर रहे हो। तोबा तोबा बिल्ला, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। एक दलील दे दो मेरे साहब, आपसे कह रहा हूँ अरशद साहब, तनकीद का क्या मायना लेते हो आप कुछ बताते नहीं। तनकीद नहीं है भाई, वो तो आप क्या है, वो तो गाली है, मौला अली को गाली देता था मेंबरों को, आप पहले बैठ के तौहीन करता था, लान तान करता था। क्या कह रहे हैं आप, दलील दे दो मुझे। हाँ दे दूंगा जो आपके व्हाट्सएप अभी जब कटेगा फोन आपके व्हाट्सएप पे बताओ। क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो लगता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आप राज़ियत को कबूल किए हो। हाँ राज़ियत यही कहते हैं, जो हक की तरफ आता है उसको भी राज़ियत कहते हैं। सुन्नी के पास काम ही क्या बचा है, उसके पास जो हक की तरफ बात करे उसको राज़ियत कहते हो। उसके पास बचा ही क्या है, जब उसके पास जवाब नहीं होता तो ये कहता है तुमने फलानी जगह से पैसे खाए हैं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, और क्या कह सकता है वो। चलो रखो भाई, तुम लोगों के पास यही काम है, तुम लोग यही कह सकते हो, ठीक है। इतने साल देवबंदी वहाबियों से डिबेट करने आए, बरेलवी तो ऐसी है, क्या दिया उसने, कहा कि तुम मुआविया पे दिखा करो, खुद वो मुआविया पर दिफा करता आ रहा है, जिंदगी भर से अपनी रोजी रोटी चलाता आ रहा है, दुनिया को उसने हसद जानने ही नहीं दिया। आला हजरत यानी जब आला हजरत नहीं थे, जितने भी लोग थे सब गुमराही इसमें थे, और सब यहाँ पे गुमराहियत मची थी। कोई इस आला हजरत के मद्दे मुकाबिल उलमा नहीं पैदा हुआ, पांचों सदी के ऊपर भारी है, सब उनके पास 56 उलूम में महारत थी और किसी को महारत नहीं थी, सब दुनिया बेगैरत थी। उनके हिसाब से सोचते हथकंडा ना अपनाओ अरशद साहब, देवबंदी वहाबी वाला हथकंडा ना अपनाओ यार। आला हजरत भाई देवबंदी वहाबी वाला तुम लोग आला हजरत के नाम से क्यों चिढ़ते हो यार भाई। आला हजरत कोई नाम नहीं, मैं अली का नाम लेता हूँ, अली का नाम करोगे तो सवाब पाओगे। मैं आला हजरत का नाम लेते हुए मुझे सवाब नहीं मिलता है। नबी ने फरमाया जिक्र वली इबादत हो, अली का जिक्र इबादत है, मैं अली का जिक्र इबादत में करता हूँ। जब भी अली का नाम लेता हूँ इबादत करता हूँ, मैं अहमद रजा का नाम नहीं लेता, ठीक है। अहमद रजा का तुम नाम लो, मेरे लिए अली का बता नहीं पाओगे। सुनो अरशद साहब, मैं थोड़ा बोलूँ, आप तो बता नहीं पाओगे, मैं ही बता देता हूँ आपको कि तनकीद के क्या मायने, जांच परख। चलो भाई ऐसा है, सुनो वक्त बर्बाद मत करो और तमीज जांच। हेलो सुनो यार, अच्छे होने के नाते एक मशवरा देता हूँ, जांच परख करना ये है तनकीद। अरे सुनो तुम अपना जाओ, पहले अपने जो अच्छा से इस्लाह करो, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना इस्लाह करिए, ठीक है, उसके बाद आइए बात करिए। आप अपनी ही सुनाते हो, थोड़ा हमारी भी सुन लो अरशद साहब। तनकीद का जो मतलब होता है वो जांच परख करना और अच्छे से जांच परख करना, किसी अच्छे बुरे में तमीज करना। तनकीद से मुराद गाली नहीं होता है, और आप तनकीद से मुराद गाली लेके आवाम को बेवजह गुमराह कर रहे हो। मुस्लिम शरीफ में ये है, वहाँ पे ये है, अपनी कही हुई बात की भी सबूत नहीं दे पा रहे हो। इस राफ़ियत से लोगों को गुमराह कर रहे हो।